Friends. This is the second video related to your differentiation. Before we shall start with the video, let us revise the concept which we have studied related to derivatives in class 11th. In class 11th, we have studied these formula. First one is d by dx of x raised to power n is equal to n into x raised to power n minus 1. Second one, d by dx of log of x to the base e is equal to 1 by x. Third one, d by dx of log of x to the base a is equal to 1 by x into log of a, where a is a positive number and a is not equal to 1. Fourth one, d by dx of a raised to power x equals to a raised to power x into log of a. Again, a is a positive number and not equals to 1. Fifth one, d by dx of e raised to power x equals to e raised to power x. Then we have studied the formula for derivative of trigonometric functions. In those, d by dx of sine of x is equal to cos of x, d by dx of cos x is equal to minus sine of x, d by dx of tan of x is equal to secant square x, d by dx of secant x is equal to secant x into tan of x, and d by dx of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot of x. 11th one, d by dx of cot of x is equal to minus cosecant square x. In this class, in class 12th, we will study few more formula related to the derivatives. But before that, we have studied the properties of derivatives in class 11th. In those properties, we have seen that the derivative of constant is equal to 0, and derivative of constant into a function where alpha is a real number except 0. d by dx of alpha x is equal to alpha times d by dx of f of x. मतलब जब हमारे पास कोई नंबर किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा होता है और हम फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो वो नंबर जो है डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं. देन d by dx of f of x plus minus g of x is equal to d by dx of f of x plus minus d by dx of g of x. In class 11th, we have studied product rule. For product rule, I am taking u and v are functions of x. Then d by dx of uv is equal to v into du upon dx plus u into dv upon dx. जिसको हम इस तरह से भी याद रखते थे, d by dx of first function into second function is equal to second function into derivative of first plus first function into derivative of second. Then in the same class, we have studied quotient rule, where we have taken u and v as functions of x, then derivative of u upon v, that is quotient of u and v, is equal to v into du upon dx minus u into dv upon dx divided by v square. और जिसको याद रखने के लिए हम ऐसा भी रख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर is equal to denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. हमने ये प्रॉपर्टीज और ये फॉर्मूला क्लास 11th में प्रूव भी किए थे अब इनिशियो मेथड से. अब हम चल रहे हैं क्लास 12 की डेरिवेटिव्स पर, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. क्लास 12th में ही फर्स्ट चैप्टर में हमने कंपोजिट फंक्शंस देखे थे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉग से या गॉफ से, और इस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस को हम चेन रूल के नाम से भी जानते हैं. हाउ वी डिफाइन दिस थिंग, d by dx of g composition f at x is equal to d by dx of f of g of x. Here f is function of g, so we are differentiating f with respect to g and into derivative of g with respect to x. Or we may state this as, let z be a function of y and y is a function of g. When you will substitute here, you will get the same expression. Then we need to find the derivative of z with respect to x. This will be equal to derivative of z with respect to y, as z is function of y. And then derivative of y with respect to x, but y is a function of x. So this can be also stated as dy of f of y
into d by dx of gx. Y is gx, so this expression is same as this expression. Now we will consider certain examples to understand this concept. So first one question is differentiate the following with respect to x. First one is sine of x raised to power 2 plus, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. Let y is equal to sine of x square plus 5. इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ और हमें फॉर्मूला पे चले तो हमें मालूम है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स. यहाँ पर जो हमारे को दिया हुआ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की जगह पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अज्यूम करता हूँ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5. दिस इज इक्वेशन. पुट सेकंड इन फर्स्ट. उससे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू साइन ऑफ t. अब y जो है दैट इज फंक्शन ऑफ t, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t. तो उससे आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ साइन t. और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t. चलिए इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 3. अब p आपने अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल. p इज फंक्शन ऑफ x, तो इसलिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे हमारे पास क्या आ गया, dt अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेज टू पावर 2 प्लस 5. दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म सम ऑफ टू फंक्शंस. डेरिवेटिव जो है सम पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, तो दिस बिकम्स d बाई dx ऑफ x स्क्वायर d by dx of x square plus d by dx of x. अब ये किस फॉर्म में, x रेज टू पावर n, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1. तो 2 माइनस माइनस 1, तो x रेज टू पावर 1 इज x. 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0. अब बाय चेन रूल dy अपॉन dx is equal to dy upon dt into dt upon dx. dy by dt आपने फाइंड किया था, दैट वाज cos t, और dt अपॉन dx आपने फाइंड किया था 2x. तो सिंप्लीफाई होके ये क्या हो जाएगा, 2x, और t आपके पास जो था उसकी वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर. अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं. दिस इज ऑल्टरनेटिव फॉर दिस वन. लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो साइन का डेरिवेटिव हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, cos ऑफ x, लेकिन x के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब हम इंटरनल टर्म, जो हमारे पास इंटरनल फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म x रेज टू पावर n, तो आ जाएगा 2x. 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ गया 0. तो आपके पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो ये हमारा फाइनल आंसर. आप चाहे तो इस फॉर्म में कर सकते हैं या
सब्स्टिट्यूट करके उसको कर सकते हैं। कोशिश करना चाहिए पहले सिंपल मेथड से करना चाहिए, टी अज्यूम करके इंटरनल फंक्शन को। जब आपको प्रैक्टिस हो जाता है तब आपको डायरेक्टली भी आप चल सकते हो, और अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप डायरेक्टली भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका थोड़ा सा समय ही बचत करेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज cos of sin of x. Again, composition of function, function के अंदर function, mixing of two functions. तो solution में let y is equal to cos of sin of x. इसको मैं मानता हूँ first. Let internal term जो हमारे पास है, internal जो function है उसको मैंने t से replace कर दिया. This is put second in first. उससे हमारे पास y किसके इक्वल हो गया, cos of t. अब y किसका फंक्शन है, t का, तो किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट से. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ cos t. cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ t. चलिए इसको हमने रेक्टेंगल में रख दिया. अब t हमने क्या अज्यूम किया था, सिंस t वाज इक्वल टू sin of x, differentiate both sides with respect to x, जिससे हमारे पास dt अपॉन dx किसके बराबर आ गया, d by dx ऑफ sin of x. सो sin x का डेरिवेटिव cos x, ये हमारे पास dt अपॉन dx आ गया. अब चेन रूल को अप्लाई करते हैं. dy अपॉन dx, क्योंकि जो हमारे को एक्चुअल फंक्शन दिया गया था उसको x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, बट y जो था t का फंक्शन था और t जो था x का फंक्शन था. dy बाय dt आपने डिटरमिन किया था माइनस साइन t, और dt अपॉन dx आपने फाइंड किया था cos ऑफ x. तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स cos ऑफ x. सो dy dt हमारे पास था माइनस टाइम्स साइन ऑफ t, और dt अपॉन dx था हमारे पास cos ऑफ x. तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या बना, माइनस टाइम्स cos ऑफ x इंटू साइन ऑफ t का वैल्यू जो था दैट वाज t किसके इक्वल अज्यूम किया था, t वाज साइन ऑफ x. आप चेक कर सकते हो. ठीक है. चलिए अगर हम इसको डायरेक्टली करते, ऑल्टरनेटिव वे, लेट y इज इक्वल टू cos ऑफ साइन ऑफ x. हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos ऑफ साइन ऑफ x. cos का डिफरेंशिएशन, हमने cos को डिफरेंशिएट किया, वो आ गया माइनस साइन. x के बदले हमारे पास साइन ऑफ x है तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x. और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, जिसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इंटू साइन ऑफ साइन x. आंसर. और अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे.
without assuming the internal functions as some other variable and then differentiating it with respect to that variable and then finding out the solution. So let's move on to the third example. This time you are having secant of tan of square root of x. तो इसका एक बड़ा सिंपल सा वे होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. तो नंबरिंग दे दीजिए, पहले आपके पास आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3. पहले 1 डिफरेंशिएट होगा, फिर 2 डिफरेंशिएट होगा, फिर 3 डिफरेंशिएट होगा. ठीक है, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा सॉल्यूशन में. लेट y इज इक्वल टू secant ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x. तो सबसे पहले मेरे को क्या डिफरेंशिएट करना है, secant फंक्शन को. तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जो किसके इक्वल हो गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ secant tan स्क्वायर रूट x. secant थीटा का डिफरेंशिएशन secant थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा के बदले मेरे पास क्या है, tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x. ठीक है, कैसे आया ये, मैं यहाँ पर साइड पे लिख रहा हूँ, d बाय dx of secant theta is equal to secant theta into tan theta into d theta upon dx. अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो थीटा मेरे पास क्या है, tan, तो इंटू डी बाय dx of tan of square root of x. चलिए, secant tan square root of x into tan of tan square root of x इनटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन. अगर आप क्लास 11th पे जाएं, d by dx ऑफ tan थीटा किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा इनटू, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से, अंदर वेरिएबल क्या है, थीटा. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू थीटा के बदले हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x. which simplifies to secant square root of x into secant of tan of square root of x into tan of square root of x. और square root of x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 square root of x. कैसे होता है वो मैं साइड पे लिख देता हूँ, लेकिन आप आगे के लिए इसको याद रखिए, डायरेक्टली कीजिए इसको, बिकॉज d by dx of square root of x is same as d by dx of x raised to power 1 by 2. This expression is same as x raised to power n. x raised to power n का डेरिवेटिव n into x raised to power n minus 1 which is equal to 1 by 2. 1 by 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, minus 1 by 2. पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, which is nothing but 1 upon 2 square root of x. So you can save time by remembering d by dx of square root of x is 1 upon 2 square root of x. Another fourth problem. Sine of ax plus b divided by cos of cx plus b. Before we start with the solution, let's revise quotient rule, that is u upon v, that was denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator upon denominator square. So we will make use of this identity here, this rule here. तो solution में let y is equal to sine of ax plus b upon cos of cx plus d. हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. तो
ये किसके इक्वल हो गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ साइन ऑफ ax plus b divided by cos of cx plus। अब अगर आप इसको कंपेयर करें तो u हमारे पास है साइन ऑफ ax plus b एंड v is cos of cx plus d। तो इस रूल को अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर दैट इज cos of cx plus d into derivative of numerator दैट इज साइन ऑफ ax plus b। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर हमारा क्या था? साइन ऑफ ax plus b into d by dx ऑफ डिनोमिनेटर क्या था? cos of cx plus डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर cx plus d का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव फाइंड करते चले जाएंगे। dy अपॉन dx, फर्स्ट टर्म सेम, साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos इनटू डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल टर्म माइनस साइन वाली टर्म एज इट इज इनटू cos ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos, और cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस टाइम्स साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी अपॉन अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी ए एक्स प्लस बी। ए एक्स, ए कांस्टेंट है, एक्स की डिफरेंशिएशन 1, तो हमारे पास क्या आ गया? ए टाइम्स cos ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू cos ऑफ ए एक्स प्लस, और जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दिस इज cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, देन माइनस इंटू माइनस प्लस सी एक्स प्लस डी। सी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इट इज सी टाइम्स साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो dy अपॉन dx क्या आ गया? a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, हम जानते हैं कि 1 बाय कॉस इज सीकेंट थीटा, तो ये क्या आ गया? सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस b इंटू साइन एज इट इज साइन अपॉन कॉस इज tan ऑफ सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर c था, इंटू 1 बाय कॉस इज सीकेंट थीटा। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। हम जानते हैं कि 1 बाय कॉस थीटा जो होता है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy अपॉन dx is equal to d by dx of sin ax plus b into secant cx plus d। तो ये किस फॉर्म में आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो सेकंड फंक्शन दैट इज secant cx plus d into d by dx of फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? साइन ऑफ ax plus b प्लस प्लस फर्स्ट फंक्शन into d by dx of second function।
और सेकेंड फंक्शन हमारे पास है सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है, लेकिन एक्स के बदले यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी, तो इसलिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं ए एक्स प्लस बी। चले आगे, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, और सीकेंट थीटा की डिफरेंशिएशन जो होती है दैट इज सीकेंट थीटा। थीटा क्या है सी एक्स प्लस डी इंटू टैन ऑफ थीटा। सीकेंट थीटा की बात कर रहा हूं, लेकिन थीटा के बदले क्या है सी एक्स प्लस डी, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। ए एक्स, ए कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास बचा ए, बी कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, प्लस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू सीकेंट ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू टैन ऑफ सी एक्स प्लस डी। और सी एक्स, सी कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो उसका डेरिवेटिव आ गया सी, डी कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। तो यू विल गेट द सेम आंसर चाहे आप कोई भी वे यूज करें। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। You have e raised to power x upon sine of x. Solution: let y is equal to e raised to power x upon sine of x। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात किया था, हम इसको न्यूमरेटर में ले जाके तो क्वोशिएंट रूल के बजाय प्रोडक्ट रूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे dy अपॉन dx किसके बराबर हो गया d by dx ऑफ e raised to power x into cosecant x, which equals to cosecant x into derivative of uv का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट रूल से v into derivative of u plus u into derivative of v, which is equal to e raised to power x की डिफरेंशिएशन e raised to power x into cosecant of x plus e raised to power x, cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosecant x into cot of x। चलिए अगर आप ध्यान दें तो e raised to power x into cosecant x दोनों टर्म्स में है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो, और जब आप कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जब ये दोनों कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचा और माइनस कॉट ऑफ x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। था ना सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे जितना प्रैक्टिस करते चले जाओगे, डिफरेंट कैलकुलस जो होता है काफी इंटरेस्टिंग होता है। एक बार इंटरेस्ट बन जाए तो इंसान इसी के साथ ही खेलता रहता है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एस्पेक्ट नहीं है इंजीनियरिंग जिसको करना है तो उसको तो ये यूज करना ही करना है। तो लेट्स टेक 6th one। e raised to power minus tan inverse of x, sorry, e raised to power tan square x। अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं करे तो लेट्स चेंज इट। तो सॉल्यूशन में लेट y is equal to e raised to power minus tan square x, differentiate both sides with respect to x। तो dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा d by dx ऑफ e raised to power minus tan square x। जैसा कि हम जानते हैं d by dx of e raised to power theta is equal to e raised to power theta into d theta upon dx।
तो इस फॉर्मूला से ई का डेरिवेटिव सेम रहेगा, माइनस tan स्क्वायर एक्स। थीटा क्या था हमारा, ये पूरा टर्म, तो इसको डिफरेंशिएट करते इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस tan स्क्वायर एक्स को, अब ये ई रेज टू पावर माइनस tan स्क्वायर एक्स, हम यहाँ से माइनस कॉमन ले आ सकते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी माइनस बाहर ला सकते बिकॉज माइनस मीन्स माइनस वन इज ए कांस्टेंट इनटू tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हो tan ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, दिस इज e रेज टू पावर माइनस tan स्क्वायर एक्स इनटू माइनस, ये एक्सप्रेशन जो आपका है वो किस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा रेज टू पावर एन, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है एन इंटू थीटा रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू थीटा अपॉन डी एक्स। तो थीटा के बदले मेरे पास क्या है tan ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू tan एक्स रेज टू पावर 2 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, थीटा हमारा क्या था tan ऑफ एक्स। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस बिकम्स माइनस 2 tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x into tan of x into e raised to power minus tan square x। ठीक, then problem number 7, this is 2 square root of cot x raised to power, solution, let y is equal to 2 times square root of cot of x square, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 into square root of cot x raised to power 2, 2 number है तो that will come out of the derivative because d by dx of alpha into fx is equal to alpha times d by dx of fx, तो into d by dx of square root of cot of x square। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था square root of x का डेरिवेटिव, तो मैं x के बदले कुछ और अल्फाबेट ले लेता हूँ, z, this is equal to 1 upon 2 square root of z। square root of x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 1 upon 2 square root of x, लेकिन x के बदले क्या है मेरे पास z, तो इंटू dz upon dx। तो इसको हम कैसा लिख पाएंगे 2 upon 2 square root of z is cot x square into d by dx of cot of x square। सो सिंप्लीफाई करना है तो ये कैंसिल हो गया, dy dy upon dx is equal to cot की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cot x रेज टू पावर 2, लेकिन हमने यहाँ पर cot थीटा की डिफरेंशिएशन किया तो थीटा के बदले हमारे पास था x स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई के होके क्या बन जाएगा dy अपॉन dx is equal to minus 2x into cosecant square x square upon square root of cot of x square। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप उसको आंसर्स में कंपेयर करोगे तो आंसर वहां पर इन टर्म्स ऑफ साइन दिया हुआ है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अदरवाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो यू कैन कीप योर आंसर अप टू दिस स्टेप, लेकिन बुक वाला आंसर मैच करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग दिस एज डी वाई upon dx is equal to minus 2x upon cosecant square means 1 upon sin square x square। ठीक है,
और कॉट ऑफ थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, दिस इज -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू cos of x square upon sin of x square into sine of x square and simultaneously divide। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे एक्सप्रेशन को और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin x square into cos of x square अपॉन sin into sin square वो रूट से बाहर आ जाएगा और ये साइन जो है वो इस पार को कैंसिल करेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स रेज टू पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 sin theta cos theta that is equal to sin of 2 theta। This is your final answer which matches with the book। Otherwise, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते you can keep your answer up to this step। Then another problem, this is 8 cos x raised to power 3 into sin square x raised to power 5। हम चेन रूल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना इजी होता चला जाएगा ये रूल, और एक बार ये बैठ गया दिमाग में तो पूरा चैप्टर खत्म। और यही चीज आगे जाके आपको इंटीग्रेशन में भी यूज करना है, तो डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी इंटीग्रेशन आएगा, तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो लेट y इज इक्वल टू cos x रेज टू पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो नीड टू अप्लाई द डिफरेंशिएट both sides with respect to x, which becomes dy upon dx is equal to d by dx of u into v। I'm not naming the functions, I'm taking u into v, और u into v की differentiation v into d by dx of u plus u into d by dx of v। v is sin square, जिसको मैं sin x raised to power 5 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब cos का डेरिवेटिव, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा, और थीटा के बदले क्या है x क्यूब, तो into d by dx of x cube। So you have to reach up to x, this is basic funda behind this one, plus plus cos x raised to power 3 x raised to power n, x raised to power n की differentiation n into x raised to power n minus 1, बट ये x नहीं है, मैं बोल x रहा हूँ लिख कुछ हो रहा हूँ, into जो भी x के बदले टर्म है उसको डिफरेंशिएट। अब माइनस x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर into sin square x raised to power 5 into sin of x raised to power 3 plus 2 into cos of x cube into sin of x raised to power 5, और sin थीटा की डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर से मैं थीटा बोल रहा हूँ बट थीटा नहीं लिख रहा हूँ, तो जो भी थीटा के बदले लिख रहा हूँ उसको डिफरेंशिएट कीजिए।
So finally, dy upon dx is equal to minus 3 x square into sine square x raised to power 5 into sine of x raised to power 3 plus x raised to power 5 का डेरिवेटिव 5 x raised to power 4 5 into 4 2 is 10 x raised to power 4 into cos x raised to power 3 sin x raised to power 5 into cos x raised to power 5। ठीक है, आप देखें यहाँ पर तो ये टर्म कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले सकते हो, या इसको 2 into 5 लिख के तो यहाँ पर 2 sin थीटा cos थीटा भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट वी आर कीपिंग दैट इज योर चॉइस कि whether you want to simplify further or not. Now next one, this is ninth problem. In this problem I am having sine of tan raised to power 3 into e raised to power minus x. तो solution है, rule is same, you have to reach up to x, that y is equal to differentiate both sides with respect to x. Then dy upon dx is equal to d by dx of sine of tan cube e raised to power minus x. तो d by dx of sine theta is cos theta. मैं sin theta बोल रहा हूँ बट लिख क्या रहा हूँ, तो जो भी टर्म थीटा के बदले लिखी जा रही है उसको आप क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan ऑफ e raised to power minus x, इसको मैं होल क्यूब लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू cos of tan cube e raised to power minus x into x raised to power n का डेरिवेटिव n into x raised to power n minus 1. I'm using d by dx of x raised to power n but writing something else, तो जो भी x के बदले टर्म लिखा that उसका डिफरेंशिएशन, दिस इज चेन रूल, tan of e raised to power minus x which equals to 3 times cos of tan cube e raised to power minus x into tan square, क्योंकि 3 minus 2 is 2 into d by dx of tan theta, और tan theta के डेरिवेटिव secant square theta, again I'm taking theta but writing e raised to power minus x, तो into जो भी टर्म है थीटा के बदले e raised to power minus x का डेरिवेटिव which equals to 3 times cos of tan cube e raised to power minus x into tan square e raised to power minus x into secant square e raised to power minus x, और e raised to power थीटा का डेरिवेटिव होता है e raised to power थीटा, लेकिन थीटा के बदले क्या हमारे पास माइनस एक्स, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, dy upon dx is equal to 3 minus x की डिफरेंशिएशन minus 1 into e raised to power minus x into cos of tan cube e raised to power minus x into tan square e raised to power minus x into secant square
e raised to power minus x. So next problem, suppose you are having, this is 10th one, log of cos of e raised to power x. Differentiate, sorry, let y is equal to log of cos of e raised to power x. Then differentiate both sides with respect to x. Then dy upon dx is equal to d by dx of log of cos of e raised to power x. Log theta की differentiation d by dx of log theta that is equal to 1 by theta into d theta upon dx. तो theta के बदले मेरे पास क्या है, cos of e raised to power x, तो into d by dx of cos of e raised to power x. Then 1 upon cos of e raised to power x into cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा. अगेन अगर आप देखोगे तो मैं बोल cos थीटा रहा हूं लेकिन लिख क्या रहा हूं, cos of e raised to power x. तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ थीटा, थीटा के बदले हमारे पास क्या है, e raised to power x into d by dx of e raised to power x, which equals to sin upon cos is tan. Sin upon cos is tan और e raised to power x की differentiation e raised to power x. So this is our final answer. dy upon dx is equal to e raised to power x into tan of e raised to power x. So another interesting problem. This is 11th one. Log of 2 to the base x. तो आपके दिमाग में आ रहा है तो फॉर्मूला तो हमने ये किया था, log of x to the base a, जिसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, d by dx of log of x to the base a was x log of a. लेकिन यहाँ पर क्या है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सोचिए तब तक. लेट y इज इक्वल टू log of 2 to the base x. हमारे पास log की एक प्रॉपर्टी होती है, log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base a. ठीक है, तो उससे y हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये हमारा a है ये b है, तो दिस इक्वल्स टू 1 upon 2 1 upon log of x to the base 2. अब इसके जैसा बन गया, इसको हम कैसा लिख पाएंगे, log x to the base 2 whole power minus 1. Differentiate both sides with respect to x. Then dy upon dx is equal to d by dx of log of x to the base 2 raised to power minus 1. Now ये किस फॉर्म में है, थीटा रेज टू पावर n, डेरिवेटिव हो जाएगा n into थीटा रेज टू पावर n माइनस 1. बोल थीटा रहा हूं लिख कुछ और रहा हूं, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो लिखा थीटा के बदले, तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस 1. इसका पावर नेगेटिव है तो इट विल गो इनटू द डिनोमिनेटर into log of x to the base a, derivative is 1 by x into log of a.
answer. This is minus 1 upon x into log of 2 whole multiplied by log of x to the base 2 whole square. Again, if you want, you can write this as 2 to the base x, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा as per the property. Okay, now let's have one more problem. But if y is equal to 1 upon 2 into log of 1 minus cos of 2x upon 1 plus cos 2x, then prove that dy upon dx is equal to 2 cosecant x. ठीक है, चलिए y is equal to 1 by 2 log 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x. ये फॉर्मूलाज हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए थे, तो अगर नहीं याद है, आई विल राइट इन द रीजन पार्ट. This is equal to 2 sine square x and this equals to 2 cos square x. Why? Because cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sine square theta. तो यहाँ से 2 sine square theta is equal to 1 minus cos theta, जो कि हमारे पास न्यूमरेटर में था. इसी तरह से cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है? 2 cos square थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस 1. तो इस 1 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 cos square थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा. तो y किसके इक्वल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से? 1 by 2 log 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस इज tan x होल पावर 2. और इफ यू रिमेंबर the properties of log, this is equal to 2 times log of tan of x, because log m raised to power n is equal to n log of n. So this 2 and this 2 again cancelled. हमारे पास y is equal to log of tan of x. This simplified form. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्वोशिएंट रूल सॉरी चेन रूल अप्लाई हो जाएगा. Differentiate both sides with respect to x, which gives you dy upon dx is equal to d by dx of log of tan of x. और log थीटा का डेरिवेटिव 1 by थीटा, बट थीटा के बदले क्या है मेरे पास? tan of x. tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, और tan x को मैं sin by cos लिख सकता, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाए? cos x upon sin of x. अगेन secant x को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन cos ऑफ x, यहाँ पर स्क्वायर था, तो dy अपॉन dx आपके पास क्या बन गया? 2 cos और cos कैंसिल हो गए, 2 अपॉन 2 into sin x cos x, which equals to 2 upon sin 2x, which is nothing but 2 cosecant 2x. तो देखते प्रूफ क्या करना था. if y is equal to if y is equal to 1 by 2 this, then prove this. So what we got, so there is a correction in the question, it was 2 cosecant 2x. So you get the final answer. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस भी गलत दिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी है that is in front of you. So we are keeping our video up to this. Till then, in the meantime, we come up with the next video. You can practice the chain rule so that अगले वाले जो problems हो वो हम उसको
सिंप्लीफाई कर सके। ओके जी।